Hello friends, so this is the first exercise of our new chapter polynomials. Now in this you have to find out of these all expressions which are expressions in one variable and which are not. We want to just classify them as expressions in one variable or not. What do you mean by variables? These alphabets are called as the variables, and in a single expression, if a single alphabet is used, then that expression is called expression in one variable. Otherwise, in such cases where three alphabets are used differently, so this expression is not an expression in one variable. There are three variables involved in this. So first of all, we'll see this. Is this an expression in one variable? Yes, because everywhere x is used. So you will write yes. Then for this, in this expression only y is used. Y is a variable. So this is also an expression in one variable. Now, here, can you tell this is an expression in one variable? One variable is used, tt. But what is the catch here? That t is under root, variable is under root. That means t will have the power, root means half, t raised to half, isn't it? Square root means t raised to half. But this is not a whole number. 1 upon 2 is not a whole number. So that is the reason this is not an expression in one variable. Always the exponents or the powers should be a whole number. So this is not an expression in one variable. So the answer is no, because of this power. This power should be in whole number. It can be any from 1 to infinity, but it should be a whole number. And here, what about this expression? Here also only one variable is used, y. But what is the case here? Y is in the denominator. So since it is a denominator, ये y का वेरिएबल क्या होगा? पावर. When you take it over here, तो y का वेरिएबल हो जाएगा -1. अगेन ये -1 होल नंबर नहीं है. So that's why this is not an expression in one variable. So अब this is clear. उसका रेशियो भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में भी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. एंड इज दिस एन एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल? क्लियरली इट इज़ नॉट. यहाँ पे एक्स, वाई और टी तीन अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हुए, तो इसलिए ये भी नहीं है. सो आउट ऑफ दिस 5 ओनली दीज 2 आर द एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल. So I hope this is clear. We'll go to the next part. This was the first part of first exercise. अब ये सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या करना है हमें? वी हैव टू राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम लोग को लिखना है. तो फर्स्ट सम क्या है? 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स. तो यहाँ पे कोएफिशिएंट का एक्स, सिर्फ हम लोग को एक्स स्क्वायर पे फोकस करना है. तो ये एक्स स्क्वायर है. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट मीन्स इसके साथ जो नंबर होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं. और यहाँ पर कुछ भी नहीं है. जब कुछ भी नहीं होता तो उसको क्या एज्यूम करते हैं? 1. तो इट हैज़ टू बी 1. तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1. दिस इज योर आंसर. देन सेकेंड इज 2 - एक्स स्क्वायर + एक्स स्क्वायर. एक्स क्यूब. नाउ हियर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? यू हैव टू टेक दिस साइन ऑल्सो. जब यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन इसका है, तो हम लोग को जब यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखते हैं तो साइन के साथ लिखना है. तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो हम लोग को 1 ही लेना है. एंड इट इज़ -1, क्योंकि माइनस साइन भी इंक्लूड करनी है. यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है. जब माइनस होगा तो यू हैव टू मेंशन -1. थर्ड सम इज π/2 एक्स स्क्वायर + एक्स. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मीन्स उसके साथ जो टर्म है. सो इट इज़ π/2. दिस इज योर कोएफिशिएंट. नेक्स्ट इज √2x - 1. यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कुछ टर्म ही नहीं है, तो यू हैव टू टेक इट एज 0. जब एक्स स्क्वायर का कुछ टर्म ही नहीं है तो डैट मीन्स
its coefficient is x square. There is no x square term only. So you have to write 0. So the third one is, give an example each of binomial of degree or monomial of degree 100. Now you have to mention any example of binomial of degree 35. डिग्री मीन्स पावर. तो कोई भी हम लोग को ऐसा लेना है बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 होगी, और एक मोनोमियल चाहिए, मोनोमियल मेंशन करना है जिसकी डिग्री होगी 100. सो यू हैव टू मेंशन योर 2 एग्जांपल्स. सो बाइनोमियल का एग्जांपल लिख देंगे. यू कैन टेक एनी एग्जांपल. 2x⁻35 - 5. बाइनोमियल है तो हम लोग को 2 टर्म्स चाहिए, तो हम लोग ने 2 टर्म्स ले लिए. बाय मीन्स 2. और मोनोमियल है, सो यू कैन राइट टेक एनी टर्म. मोनोमियल का डिग्री शुड बी 100. सो आई कैन टेक एनी अल्फ़ाबेट m⁻100 and I can write any term, any number over here. So this becomes a single term, monomial. Mono means single और binomial 2 terms. तो हम लोग ने ये एग्जाम्पल ले लिया. Next part is, you have to write the degree of the following polynomials. So the first term here is x square plus, sorry, it is 5x cube plus 4x square plus 7x. इसकी हम लोग को डिग्री मेंशन करनी है. So what do you mean by degree? डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर. इन तीनों में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल्स का, दैट इज़ द डिग्री. सो इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर इज 3. सो डिग्री इज 3. सेकेंड सम इज 4 minus y square. Now what will be the degree of this? It is 2. थर्ड 5t minus √7. अब यहाँ पे डिग्री क्या है? t के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, सो यू हैव टू एज्यूम 1. तो इसका पावर डिग्री होगा 1. एंड द लास्ट सम इज 3. इसकी क्या डिग्री है? यहाँ पे कुछ वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री का क्वेश्चन ही नहीं है. तो यू हैव टू टेक इट एज 0. देयर इज़ नो वेरिएबल. तो अभी हम लोग को डिग्री किसका मिलेगा? फिर वेरिएबल ही नहीं है, तो सो यू हैव टू टेक इट एज 0. Next part of the question is, you have to classify as linear, quadratic and cubic. So we'll take the first sum, x square plus x. Now according to the degree, जो भी इसकी डिग्री रहती है उसके हिसाब से हम लोग को इसमें क्लासीफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में. लीनियर मीन्स अगर डिग्री 1 होगी तो हम लोग उसको लीनियर कंसिडर करेंगे. क्वाड्रेटिक में डिग्री अगर 2 होगी तो, एंड क्यूबिक डिग्री 3 होगी तो इट विल बिकम क्यूबिक. तो अब यहाँ पे डिग्री क्या है? यस, इट इज़ 2. सो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सेकेंड इज x minus x cube. Now here what is the degree? x minus x cube. x का तो 1 है, लेकिन x क्यूब में 3 इज द डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक. सो इट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल. थर्ड सम इज y plus y square plus 4. हियर डिग्री क्या है? 2. तो अगेन ये क्वाड्रेटिक है. इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज 1 plus x. अब यहाँ पे x की डिग्री क्या है? 1 है, तो ये बन गया लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज 3t. यहाँ पे भी t का डिग्री 1 है, सो इट इज़ अगेन लीनियर पॉलिनोमियल. सिक्स्थ वन इज r स्क्वायर. तो डिग्री 2 है, तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सेवेंथ इज 7x क्यूब. तो यहाँ पे डिग्री 3 है, तो ये बन जाएगा क्यूबिक. सो इट इज़ अ cubic polynomial. So I hope this is clear.
डिग्री के हिसाब से इसको क्लासीफाई करना है. लीनियर डिग्री इज़ 1, क्वाड्रेटिक लीनियर डिग्री इज़ 2 एंड क्यूबिक में डिग्री इज़ 3. सो अकॉर्डिंगली हमें क्लासीफाई करना है. So we'll move to the next exercise now. Exercise 4.2. Now in this, you have to find the value of the polynomial. First sum is 5x minus 4x square plus 3. हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट. अब यहाँ पे 3 कंडीशंस दी हुई है. क्या क्या कंडीशंस है? जब x की वैल्यू 0 होगी तब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. सेकेंड पार्ट इज़ जब x की वैल्यू -1 होगी तब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. एंड द थर्ड पार्ट इज़ जब x की वैल्यू 2 होगी. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. You have to find the value of this polynomial at x equals to 0, at x equals to -1 and x equals to 2. तो अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट कंसिडर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये पॉलिनोमियल को एक नाम दे देंगे. तो लेट f of x be equals to 5x minus 4x square plus 3. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? इफ़ x इक्वल्स टू 0. देयरफॉर अब यहाँ पे x की जगह सब हम लोग 0 डाल देंगे. सो f ऑफ 0 दिस इज इक्वल टू, अभी जहाँ जहाँ x है हम लोग वहाँ पे 0 रिप्लेस कर देंगे. तो 5 इंटू 0 यू हैव टू फर्स्ट पुट इट इन द ब्रैकेट. x की जगह जो भी वैल्यू है हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे. माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3. होप यहाँ तक क्लियर है. हम लोग ने जस्ट x की जगह 0 डाल दिया. अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. इक्वल्स टू 0 इंटू 5 इज़ 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर इज़ वॉट? इट इज़ अगेन 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 0 माइनस 4 जीरोज़ इज़ अगेन 0 प्लस 3. तो इसका वैल्यू हम लोग को 3 मिलता है. देयरफॉर f ऑफ 0 इज़ 3. दिस वॉज द फर्स्ट कंडीशन. वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0 हम लोग को ये मिला. अब सेकेंड कंडीशन इज व्हाट? इफ़ x इक्वल्स टू -1. तो देयरफॉर f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ -1. हम लोग x की जगह -1 डाल दिए. माइनस 4 इंटू फिर x की जगह -1 डालेंगे. -1 द होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू. Now this while opening you have to be careful क्योंकि यहीं पर सब बच्चे मिस्टेक करते हैं. Always write the values in the bracket. और जब माइनस साइन होगा तो बहुत केयरफुल होना है. 5 इंटू 1 इज़ 5 एंड यू हैव टू पुट दिस माइनस साइन ऑल्सो. माइनस साइन को छोड़ना नहीं है. सो 5 इंटू -1 इज़ -5. ये माइनस के साइन डाल दिए. 4 हम लोग ने एज इट इज़ लिख दिए. अब -1 का स्क्वायर क्या होता है? I'll make a working column over here. -1 का स्क्वायर क्या है? -1 का स्क्वायर मतलब -1 को हम लोग को 2 बार मल्टीप्लाई करना है. -1 इंटू -1. अब ये 1 1 ज़ा 1 लिख दिए. अभी माइनस इंटू माइनस कितना होता है? प्लस होता है. हम लोग यहाँ पे साइंस को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख रहे हैं. तो माइनस माइनस इज़ प्लस एंड 1 1 ज़ा इज़ 1. दिस इज़ द आंसर फॉर -1 का स्क्वायर. तो हम लोग को +1 मिला. प्लस 3 इक्वल्स टू -5 माइनस 4 1 ज़ा इज़ 4 प्लस 3. अब यहाँ भी कैलकुलेशन करते वक्त मिस्टेक नहीं करना है. पहले इन दोनों को कर लेंगे कैलकुलेशन. व्हाट इज़ -5 माइनस 4? अब यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. -5 माइनस 4 कितना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करना है. माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. माइनस इंटू माइनस इज प्लस. तो हम लोग को एक्चुअली प्लस करना है. तो हम लोग 5 + 4 आंसर लिख देंगे 9. और फिर बाद में क्या करना है? ग्रेटर नंबर साइन डालनी है. एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग ग्रेटर नंबर साइन डालते हैं. मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ आंसर लिख देते हैं. तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड दिस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द साइंस. तो यहाँ पे तो साइंस को हम लोग मल्टीप्लाई करके जो हम लोग को कैलकुलेशन करना है वो कर दिए. लेकिन उसके बाद ग्रेटर नंबर साइन डालनी है. दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है? 5. तो हम लोग इसकी साइन डालेंगे.
-9 इज़ योर आंसर फॉर दिस, -5 -4. देन +3 एज इट इज़ लिखना है. अब फिर यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि हम लोग को सब्ट्रैक्शन करनी है. तो 9 - 3 इज़ व्हाट, 6, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस डालना है. तो f ऑफ -1 इसका आंसर हम लोग को मिला -6. तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक था. थर्ड पार्ट क्या है, हम लोग को लेना है इफ x इक्वल्स टू 2. तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 ऑफ 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3. हम लोग एक्सप्रेशन में x की जगह 2 डाल दिए. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दिस. 5 2 इज 10 माइनस 4 इंटू, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 2 2 इज व्हाट, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3. तो ये 10 माइनस 4 4 इज 16 प्लस 3. अब तीनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले इन दोनों को करेंगे. व्हाट इज 10 माइनस 16, 16 माइनस 10 इज 6, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस. तो 10 माइनस 16 इज -6, और ये +3 एज इट इज़. अगेन प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी हम लोग को सब्ट्रैक्शन करनी है. तो 6 - 3 इज 3, और ग्रेटर नंबर साइन डालनी है. 6 को ग्रेटर नंबर साइन को, ग्रेटर नंबर को माइनस के साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा. सो थर्ड पार्ट का हम लोग को मिला f ऑफ 2 इज -3. सो दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अब सेकेंड पार्ट में हम लोग को क्या है, वी हैव टू फाइंड p ऑफ 0 फाइंड करना है, p ऑफ 1 फाइंड करना है, एंड p ऑफ 2 फाइंड करना है इन सब पॉलिनॉमियल्स के लिए. तो फर्स्ट पॉलिनॉमियल हम लोग को दिया है p ऑफ y इज y² माइनस y प्लस 1. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. तो इसी क्वेश्चन के लिए हम लोग को इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. जैसे हम लोग ने यहाँ पे फाइंड करे, इसी तरह से p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, मतलब क्या, y की जगह हम लोग को फर्स्ट में 0 डालना है, उसका आंसर फाइंड आउट करना है. फिर y की जगह 1 रिप्लेस करना है, फिर उसका फाइंड करना आंसर, एंड देन 2 डाल के फिर उसका आंसर फाइंड करना. सो विल डू द फर्स्ट पार्ट. पहले हम लोग p ऑफ y की जगह 0 लेंगे. तो p ऑफ 0 इज़ व्हाट, 0² माइनस 0 प्लस 1. जस्ट y की जगह हम लोग 0 डाल देंगे. तो 0² इज एनीवेज 0 ओनली. सो 0 माइनस 0 प्लस 1. तो ये पार्ट पूरा 0 है, एंड योर आंसर विल बी 1. सो p ऑफ 0 हम लोग को 1 मिल गया. नेक्स्ट पार्ट है, हम लोग को फाइंड करना है p ऑफ 1. तो p ऑफ 1 के लिए y की जगह सब 1 सब्सटीट्यूट करेंगे. सो 1² माइनस 1 प्लस 1. So 1² is what, 1 minus 1 plus 1. अभी इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे. व्हाट इज़ 1 minus 1, 0 प्लस 1, एंड योर आंसर इज अगेन 1. तो p ऑफ 0 भी 1 मिला, p ऑफ 1 भी 1 मिला. अब हम p ऑफ 2 फाइंड करेंगे. p ऑफ 2 के लिए y की जगह 2 डालना है. तो 2² माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2² क्या होता है, 2² is 2 into 2. You have to multiply this number 2 times to get the square of this term. So 2 2 is 4 minus 2 plus 1. 4 minus 2, पहले इन दोनों को करेंगे. What is 4 minus 2? Yes, 2. And plus 1 you will write as it is. And this is 3. So p of 2 का वैल्यू हम लोग को 3 मिला. So in a similar way, we will continue with the second sum. तो ये तो हमारा फर्स्ट सम था. विल कंटिन्यू विद द सेकेंड सम. सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारा p ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t² माइनस t³. दिस इज योर एक्सप्रेशन. दिस वॉज योर फर्स्ट सम, दिस वॉज सेकेंड सम. अब इसमें भी हम लोग को p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 0 से शुरू करेंगे. p ऑफ 0, इन प्लेस ऑफ 2 हम लोग को जस्ट 0 डालना है. जहाँ जहाँ पर t है हम लोग को वहाँ पे 0 डालना है वेरिएबल्स की जगह. सो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0²
माइनस 0 क्यूब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 + 0 + 2 × 0 square is 0 only and minus 0. So equals to 2 + 0 is 2 plus 2 × 0 is 0 minus 0. तो इसका आंसर 2 है। Now we will replace with 1. अभी जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हम लोग 1 से रिप्लेस करेंगे। So 2 + 1 + 2 × 1 square minus 1 cube equals to 2 + 1 + 2 × 1 square is what? 1 minus 1 cube is again 1 equals to 2 + 1 + 2 minus 1. तो 2 + 1 पहले करेंगे 3 plus 2 minus 1 is what? 1. So 3 + 1 you will get the answer 4. Now we will find P of 2. तो P of 2 की जगह t की जगह से हम 2 डालेंगे। So 2 + 2 + 2 × 2 square minus 2 cube equals to 2 + 2 + 2 × 2 square is 4 minus 2 cube is 2 cube means 2, you have to multiply 2 3 times. 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 × 2 and your answer is 8 equals to 2 + 2 कितना है? 4 plus 2 4s is 8 minus 8. अब यहाँ पे +8 -8 कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर बचा 4. सो दिस वॉज योर फर्स्ट एंड सेकेंड सम। ये हमारा थर्ड सम है। P of x is equal to x cube. तो यहाँ भी हम लोग को P of 0, P of 1, P of 2 फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल पुट P of 0. P of 0 जस्ट इन प्लेस ऑफ x हम लोग को 0 डालना है। तो 0 क्यूब इज इक्वल टू 0. ये हम लोग को वैल्यू मिल गया P of 0 का। इट्स सिंपल। P of 1 ये एक एक लाइन में आंसर मिल जाएगा। 1 क्यूब यू हैव टू टेक एंड 1 क्यूब इज 1 ओनली। P of 2 2 cube is equal to 8. This was a simpler sum. Fourth sum is P of x is equal to x minus 1 into x plus 1. तो यहाँ पे पहले हम लोग P of 0 लेंगे। P of 0 is what? x की जगह हम लोग 0 डालेंगे। 0 minus 1 into 0 plus 1. तो एक एक ब्रैकेट का पहले आंसर लिखना है। व्हाट इज 0 minus 1? 0 minus 1, 0 में से हम लोग 1 निकाल रहे हैं। 1 इज ग्रेटर नंबर, सो उसकी साइन आएगी एंड 0 minus 1 इज -1 ओनली। तो माइनस की साइन डाल दिए 1 क्योंकि 1 ग्रेटर है। 0 और 1 में 1 ग्रेटर है एंड 0 minus 1 इज 1 ग्रेटर नंबर साइन इनटू 0 plus 1 इज 1 और इसका आंसर क्या मिलेगा? 1 × 1 इज 1 एंड दिस माइनस साइन विल ऑल्सो बी देयर। सो इसका आंसर -1 मिला। देन P of 1 इज व्हाट? 1 minus 1 into 1 plus 1. अब ये 1 minus 1 का आंसर क्या है? 0 into 1 plus 1 का आंसर 2 and 0 into anything is 0. Then P of 2, 2 minus 1 into 2 plus 1. 2 minus 1 क्या है? 1 into 2 plus 1 is 3. So the answer is 3. So this was your second part. So move on to the third part. So the third part is you have to verify whether the following are zeros of the polynomial. So the first sum is P of x is equal to 3x plus 1, where x is -1/3. Now how will you verify whether the following are the zeros of the polynomial means what? That means you have to put this value of x here in this expression, and if the answer is 0 then it is a zero of the polynomial. So that's what you mean. You have to verify. You have to put this value in this expression and the answer should be 0. If it is 0 then it is a
zero of the polynomial. Otherwise your answer is no. So we'll solve the first one. Now in place of x you have to write minus 1 upon 3. So I will write p of minus 1 upon 3 is equal to 3 into, now I'll put this value, x की जगह हम लोग minus 1 upon 3 डाल देंगे plus 1. Now how to solve this? This is multiplication, so you can directly cross it out. Cancel it this. 3 1s are 3, 3 1s are 3. So here your answer is minus 1. और ये plus 1 यहाँ पे लिख दिए. What is minus 1 plus 1 is equal to 0. तब यहाँ पे p of minus 1 upon 3 का आंसर हम लोग को 0 मिला. That means x equals to minus 1 upon 3 is the 0 of the polynomial. ये क्वेश्चन का मतलब हम लोग को x की जगह वो डालना है एक्सप्रेशन में और हम लोग को आंसर 0 मिलना चाहिए. अगर आंसर 0 नहीं मिल रहा है तो हम लोग को यहाँ पे स्ट्रेट अवे लिखना है इज़ नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. इफ़ इट यू आर गेटिंग 0 देन यू हैव टू राइट इन दिस वे, दिस इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. सेकेंड वन करेंगे. p of x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 4/5. तो यहाँ पे भी हम लोग p ऑफ 4/5 फाइंड करेंगे. तो x की जगह 4/5 डाल दिए, माइनस पाई एज इट इज़ लिखेंगे. सो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? दिस 5 एंड दिस 5 यू कैन कैंसिल इट आउट और आंसर मिला 4 माइनस पाई. अब यहाँ पे हम लोग को आंसर 0 नहीं मिल रहा है, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. Clear? So in this way we will continue with the third one. Third is p of x equals to x square minus 1. यहाँ पे x की वैल्यू 2 दी हुई है, एक तो 1 है और एक -1 है. तो हम लोग को दोनों एक एक बार यूज़ करना है और हम लोग को फाइंड करना है इसका आंसर. तो पहले हम लोग लेंगे p ऑफ 1 इज इक्वल टू x की जगह 1 डालेंगे -1. 1 स्क्वायर इज़ वॉट? 1 -1. So 1 minus 1 is 0. That means x equals to 1 is a 0 of the polynomial. अभी हम लोग डालेंगे -1. So -1 the whole square -1. -1 the whole square means you have to multiply this -1 2 times. I showed you in the previous sum also. Minus minus is plus and 1 1 is 1. तो -1 into -1 is +1. So इसका आंसर मुझे 1 मिला और ये -1 एज इट इज़ लिखेंगे और ये 1 - 1 इज़ अगेन 0. तो देयरफॉर यू कैन राइट x इक्वल्स टू 1, -1 आर द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल. ये है फोर्थ सम. p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और यहाँ पे भी x की दो वैल्यूज़ दी हुई है, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पे पहले p ऑफ -1 ले लेंगे. फर्स्ट वैल्यू इज़ -1. सो -1 प्लस 1 इंटू -1 माइनस 2. -1 प्लस 1 इज़ 0. -1 माइनस 2, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? माइनस माइनस प्लस होता है और 2 + 1 इज़ 3 और ग्रेटर नंबर साइन इज -3 and 0 into anything is 0. Therefore p of -1 is the 0 of the polynomial. ये मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन है, whether it is 0 of the polynomial or not. Now we will move to the second part. अब यहाँ पे एक बार हम लोग ने -1 डाले, अब नेक्स्ट इसमें p of 2 लेंगे. सो 2 + 1 into 2 minus 2. So 2 plus 1 is 3 and 2 minus 2 is 0. So 3 into 0 is 0. Therefore p of 2 is the 0 of the polynomial. So in this way we are getting the zeros of the polynomial. अगर आंसर 0 मिल रहा है तो हम लोग कंसिडर करना it is the 0 of the polynomial.